Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to cover up audit committee, visual mechanism, then we have the nomination remuneration committee, then we have the stakeholders relationship committee. All the committees portion we are going to cover today. These are mentioned under section 177 and section 170. So today's target would be to complete section 177 and section 178 completely. So let's start with the audit committee visual mechanism, which is given under section 177 and section 178 subsection 8. तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 3.17 of the study material. You will get this study material chapter in the description box. I have mentioned the link to get this PDF. You can either open that link or you can open your study material, which is the latest study material issued by the institute for the May 20 and onwards examination. So let's start with the video now. It's given on page number 3.17. Let's start. Audit committee. Section 177 of the Act and Rules 6 and 6A of the Companies Meetings of Board and its Powers Rules 2014 contain the provisions in respect of audit committee. These provisions are described as under. So हमारे पास इसमें कौन सा relevant rule आएगा section 177 के साथ rule number 6 and 6A, ठीक है, जिसमें audit committee से related provisions लिखे हुए हैं. So company is required to constitute an audit committee section 177 subsection 1 and rule 6. So which companies are required to constitute an audit committee? If you see the limits, you'll find कि यही वही limits हैं जो हमने किस में पढ़ी थी, independent directors के अंदर पढ़ी थी. So if you have not seen that video and you want to clearer concepts about independent directors, it is given in the playlist of appointment and qualifications of directors. Still, I would mention the link in the description box of that particular video if you want to see it. So let's start with the first point, which is given section 177 subsection 1 and rule 6. Company is required to constitute an audit committee. Following companies are required to constitute an audit committee: every listed public company, public companies having paid up share capital of 10 crore rupees or more, public companies having turnover of 100 crore rupees or more, public companies which have in aggregate outstanding loans, debentures and deposits exceeding 50 crore rupees. मतलब 50 करोड़ है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऑडिट कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी. कब? जब बोरोइंग्स सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपीज़ की हैं. तो ये और वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चल गया होगा देखते ही कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी हमने सेम पढ़ी थी. Note: the public companies stated at points B, C and D, which means public companies जिनकी paid up share capital 10 करोड़ और more है, या फिर public companies जिनकी turnover 100 करोड़ या more है, या फिर वो वाली public companies जिनकी borrowings 50 करोड़ से ज़्यादा हैं. तो वो वाली classes of companies are prescribed by rule 6 of the companies meetings of board and its powers rules 2014 and are required to constitute an audit committee. In fact, rule 6 requires that the companies prescribed in rule 4, rule 4 किस में था? Independent directors में था. So rule 6 requires that the companies prescribed in rule 4 of the company's appointment and qualification of directors rules 2014 are the companies which shall constitute an audit committee. So यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ऑडिट कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो हमने टेक्स्ट ऊपर पढ़ा है उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया हुआ है, तो आपको रिवीजन पर्पस के लिए हो सकता है हेल्पफुल लगे अगर आपको चार्ट्स फॉर्म में पढ़ने की आदत है. सो समरी चार्ट में लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स टू हैव अ ऑडिट कमेटी, और दूसरा लिखा हुआ है सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है किसमें? रूल 6 में. रूल 6 में वही कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है जो रूल 4 में प्रिस्क्राइब थी. तो रूल 4 और रूल 6 के हिसाब से कौन सी कंपनीज थी? पब्लिक कंपनीज जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़ है, और हमारे पास टर्नओवर मोर देन इक्वल टू कितना है? मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है. ठीक है. सो दिस वाज द एप्लीकेबिलिटी की कब आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ऑडिट कमेटी. नेक्स्ट आ जाता है कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी. तो कोई भी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो कि रूल 4(1) से कवर्ड नहीं हैं,
कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है जो रूल 4.1 से कवर्ड नहीं है तो उसको ऑडिट कमेटी फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड देयरफॉर आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी. Joint venture, wholly owned subsidiary and a dormant company defined under section 455 of the act. So इस केस में आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी. When a company ceases to constitute an audit committee, अब कब आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी? जब आपकी जो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की लिमिट थी, ठीक है, वो लिमिट आपके 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक एक्सीड नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रहे आप उन तीनों में से कोई भी कंडीशन को, तो उस केस में आपको तब तक फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब तक आप उन कंडीशंस को मीट नहीं कर लेते. ठीक है. क्लैरिफिकेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन टू रूल 4.1 क्लैरिफाइज दैट द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एज द केस में बी एज एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डे of the latest audited financial statements shall be taken into account. So इसमें एक बार हम रीड कर लेते हैं कहाँ से. When a company ceases to constitute an audit committee से, a company which was obligated to constitute an audit committee shall not be required to constitute such audit committee if it ceases to fulfill any of the 3 conditions relating to paid up share capital, turnover or outstanding loans etc. as laid down in third proviso to rule 4.1 for 3 consecutive years. It shall again be required to constitute an audit committee if it starts meeting any of such conditions. So clarification is there. Explanation to rule 4.1 clarifies that the paid up share capital or turnover or outstanding loans, debentures and deposits as the case may be, as existing on the last date of the latest audited financial statements shall be taken into account. अब आ जाते हैं कि आपको इसमें क्लैरिफिकेशन में कुछ नहीं, आपको बताया हुआ है कि जो फिगर्स लोगे आप टर्नओवर की, पेड अप शेयर कैपिटल की, लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स की, वो किस दिन की लोगे. तो जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी बैलेंस शीट डेट की हम लेंगे. ये सेम वही प्रोविजंस चल रहे हैं जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में पढ़े थे. अब बात आती है कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑडिट कमिटी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 सबसेक्शन 2, द ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स with independent directors forming a majority. So in this particular subsection I committed a mistake while recording the independent directors video. I accept that mistake and I'm really sorry for that mistake because I said something which was wrong. That is why in that video I have mentioned this in the comment section. I have that I have said this thing wrong, this subsection wrong, and I have given the example also there that this is the clarification that this should be the interpretation of what is written over here. I by mistake said something wrong, so that is why I have given example over there. If you are seeing that video, please refer to the example, or if you are seeing this video before, that means you will be already clear with this provision, which means I am going to repeat the same now with correct information this time. According to section 177 subsection 2, audit committee कंसिस्ट करेंगी विद अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स. इट डज़ नॉट मीन कि 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा. वहाँ पर मैंने ये चीज़ गलत बोलती थी. मैंने बोला था, छोड़ो, जो बोला था वो गलत बोला था, अभी मैं सही बोलती हूँ. सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए इन दी ऑडिट कमेटी. 3 होने चाहिए. अब इन 3 में से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है कि जो 3 डायरेक्टर्स हैं इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो मेजॉरिटी फॉर्म करने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 3 डायरेक्टर्स विच इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो 3 ही हैं. सपोज 3 ही हैं कंपनी में, तो 3 हैं, तो मेजॉरिटी कब बनेगी? जब 2 इंडिपेंडेंट होंगे. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर हमें मेजॉरिटी करनी है तो 2 शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन दिस बोर्ड, इन दिस कमिटी. अगर मेरी कंपनी में सपोज 5 हैं तो 5 के केस में 3 शुड बी इंडिपेंडेंट आउट ऑफ 5. सपोज मेरी कंपनी में 6 हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स,
कमिटी में, मेरी कमिटी में 6 डायरेक्टर्स हैं, तो 6 में से कम 4 डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो कमिटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी बन रही होगी, दैट मेजॉरिटी शुड बी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. दिस इज व्हाट this subsection says. I hope it is clear. If it is still not clear, do let me know about this. I will definitely make a separate video on this if it is still not clear. Although इतना difficult provision नहीं है, बस मेरे पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई थी, इस वजह से मैंने गलत बोल दिया, and I'm really sorry for that. ठीक है. So according to section 177 subsection 2, the audit committee shall consist of a minimum of 3 directors. minimum कितने होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए कमिटी के अंदर, जिसमें से विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी. जो भी डायरेक्टर्स का नंबर होगा उसमें से मेजॉरिटी कौन फॉर्म करने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करने चाहिए. आई होप दिस विल बी क्लियर नाउ. नेक्स्ट, further it is required that the majority of members of the audit committee, including its chairperson, shall be the persons with ability to read एंड अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फर्दर क्या लिखा हुआ है कि जो भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए ना ऑडिट कमेटी के अंदर, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, वो ऐसे पर्सनस होने चाहिए जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना भी आता है, और पढ़ना ही नहीं, उनको समझ में भी आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अगर उन्हें समझ ही नहीं आएंगी तो वो आगे कैसे उसको अप्रूव करेंगी. अभी हम पढ़ेंगे कि ऑडिट कमेटी का क्या क्या काम होता है, तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि इसीलिए लिखा है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना दोनों आना चाहिए. ठीक है, मेजॉरिटी मेंबर्स को. ठीक है, अब आ जाता है एग्जेम्पशन का बॉक्स, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ सच एंड सच नोटिफिकेशन डेटेड सो एंड सो, in case of section 8 companies, the requirement of section 177 subsection 2, that is, while constituting an audit committee, the independent directors shall form a majority. ठीक है, तो ऑडिट कमेटी फॉर्म करते वक्त इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो मेजॉरिटी फॉर्म करने चाहिए. ऐसा नहीं अप्लाई होगा इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी अगर उसने कंप्लायंस किया है विद सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92. इसमें क्या मतलब हुआ, क्योंकि देखो जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं ना, उनके केस में बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों वो मेजॉरिटी फॉर्म करें. कमेटी की जो मेंबर्स है, कमेटी के मेंबर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी फॉर्म करें. ये प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए ही लाया गया है. ठीक है, ऐसी सेक्शन 8 कंपनीज़ जिन्होंने क्या किया है, सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस किया हुआ है. अब आ जाते हैं डिस्क्लोजर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी पर. सेक्शन 177 सबसेक्शन 8, द बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑडिट कमेटी. तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको इस चीज़ का डिस्क्लोजर करना चाहिए कि आपके कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन है. in case where the board had not accepted any recommendation of the audit committee, क्योंकि जनरली ऑडिट कमेटी के पास बात आती है, फिर ऑडिट कमेटी से बोर्ड के पास जाती है. सो बोर्ड को कुछ ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को कुछ रेकमेंड किया, लेकिन वो रिकमेंडेशन को बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उस केस में ये नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशन हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इन दी बोर्ड्स रिपोर्ट, एंड साथ ही साथ आपको रीजंस भी बताने पड़ेंगे. ठीक है, सो इन केस वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, द सेम शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजंस देयरफॉर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट कमेटी. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कमेटी की, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 के अंदर. Every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall include recommendation for the appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company. So ये आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा कि ऑडिट कमेटी जिस भी कंपनी के अंदर फॉर्म्ड होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसके केस में जो अपॉइंटमेंट है, रेमुनरेशन है और अपॉइंटमेंट के टर्म्स क्या हैं, ये सब ऑडिट कमेटी ही रेकमेंड करती है टू द बोर्ड. तो इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बीइंग दी ऑडिट कमेटी. लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में दिया हुआ है कि आप ये जो वर्ड्स है ना,
recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment, इनको प्लेस कर दो with the words recommendation for remuneration. सिर्फ रिकमेंडेशन किस चीज़ का करेगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? रेमुनरेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो करती है CAG. तो इसी वजह से यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात नहीं होगी, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन की जो बात होगी, रिकमेंडेशन होगी, वो ऑडिट कमेटी देगी, बाकी सब CAG करता है. तो ये कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 137 या फिर 92. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट, review and monitor the auditor's independence and performance and effectiveness of the audit process. Review करना, monitor करना auditor की independence को, उसकी performance को and effectiveness of the audit process. ठीक है, कि ऑडिटर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, और ऑडिटर के जो भी ऑडिट प्रोसेसेस हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हैं भी नहीं. तो इस चीज़ को रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ये सब किसका काम होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कमेटी की होती है. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को देखना, ये सब काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कमेटी की. इसीलिए तो लिखा था कि ऑडिट कमेटी के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनको पढ़ना और समझना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, नहीं तो फिर वो कैसे एग्जामिन कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी की विद द रिलेटेड पार्टीज़, उनको अप्रूव करवाना पड़ता है. तो अप्रूव किससे कराना पड़ता है? ऑडिट कमेटी से कराना पड़ता है. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? ऑडिट कमेटी हुई. तो इसीलिए इसके लिए कुछ बताया हुआ है. वैसे तो अप्रूवल लेना पड़ता है, मॉडिफिकेशंस करवानी, तो वो सब भी ऑडिट कमेटी से करना पड़ता है. लेकिन एक प्रोविज़ो डाल दी कि आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब ऑमनिबस अप्रूवल लिया होता है. अब ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है? ऑमनिबस अप्रूवल होता है कि आपने इकट्ठा एक बार ही अप्रूवल ले लिया और वो उस टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहेगा. मैं आपको अभी बताने ज़्यादा समय आएगा, 1 ईयर का होता है वैसे, बट चलो ठीक है, मैंने बता दिया. बट पढ़ेंगे, अभी हम सब पढ़ेंगे. मैं जस्ट एक ब्रीफ कर देती हूँ. चलो, कि वैलिड रहेगा फॉर 1 ईयर. ऑमनिबस अप्रूवल ले लिया, इस तरीके की ट्रांजैक्शन होगी तो आपको बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा जब आपके रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी. ठीक है. प्लस इसमें बताया होगा कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आपको अभी पता नहीं चल रहा कि फ्यूचर में कैसे होने वाली है, ना ही कोई पास्ट में ऐसी हो चुकी है, ना ही आज की डेट में समझ आ रहा है तो कि कितना अमाउंट की होगी, क्योंकि अमाउंट को भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है अप्रूवल में. पर अब आपको अमाउंट समझ नहीं आ रहा तो आप लेस दैन 1 करोड़ वाली अगर ट्रांजैक्शन है, मतलब बेसिकली आप उसको परमिशन दे दोगे कि आप ले लो अप्रूवल, बिना प्रायर अप्रूवल के आप ट्रांजैक्शन में इंटर कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस ओमनिबस अप्रूवल. लेकिन उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो ऐसे टाइप के प्रोविजंस आएंगे. होल्ड ऑन, हम अभी पढ़ेंगे सब कुछ. हम एक बार मतलब लाइन बाय लाइन करके कवर अप करेंगे. ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा इससे. ऑमनिबस अप्रूवल पे आते हैं. तो इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द ऑडिट कमिटी मे मेक ऑमनिबस अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6A. रेफर टू द बॉक्स बिलो. ठीक है, तो किसके साथ हो रही हैं ट्रांजैक्शन? रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही हैं. तो उसके लिए अप्रूवल, ऑमनिबस अप्रूवल कौन देगा? ऑडिट कमेटी देगी. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 188. ठीक है, आ जाते हैं आप कंडीशंस पर विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6A ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 फॉर ऑमनिबस अप्रूवल actions on annual basis. According to Rule 6A, all the related party transactions shall require approval of the audit committee. The audit committee may make omnibus approval for the related party transactions proposed to be entered into by the company subject to the following conditions. So Rule 6 के हिसाब से जो भी सारी related party transactions होंगी उसके लिए आपको audit committee का approval चाहिए होता है. अब audit committee क्या करेगी? omnibus approval दे देगी कुछ related party transactions के लिए which are proposed to be entered by the company subject to the following conditions. कुछ conditions के बाद पहला है the audit committee shall after obtaining the
approval of the board of directors specify the criteria for making the omnibus approval, which shall include maximum value of the transactions in aggregate which can be allowed under the omnibus route in a year. पूरे साल में कितनी टोटल ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती हैं, कितनी मैक्सिमम वैल्यू की टोटल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं इन अ ईयर, इस चीज़ का क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देगी कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको ऑमनिबस अप्रूवल दे रहा हूँ. द मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन विच कैन बी अलाउड. तो पहले लिमिट लगाई टू ऑल दी ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर, फिर लिमिट लगाई पर ट्रांजैक्शन पर. थर्ड लिमिट लगाई एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन टू द ऑडिट कमिटी एट द टाइम ऑफ सीकिंग द ऑमनिबस अप्रूवल. जब आप ऑमनिबस अप्रूवल ले रहे हो तो आपको किस एक्सटेंट तक और किस तरह से डिस्क्लोजर्स करने हैं ऑडिट कमेटी को जब भी आप ऑमनिबस अप्रूवल ले रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू करेगी एट सच इंटरवल्स एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट. तो अब जो ऑमनिबस अप्रूवल है उसका सही से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी कुछ इंटरवल्स में. ठीक है. तो ये इसमें लिखा हुआ है रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी पर्सुएंट टू ईच ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल मेड. ठीक है. ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द ऑमनिबस अप्रूवल बाय द ऑडिट कमेटी. ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर आप ऑमनिबस अप्रूवल अप्लाई करके उनको अंडरटेक नहीं कर सकते हो, तो वो सब क्या बताएगी ऑडिट कमेटी, ये सब चीज़ें बताएगी. Next point. The audit committee shall consider the following factors while specifying the criteria for making the omnibus approval. Repetitiveness of the transactions in past or in future. Audit committee consider करेगी कुछ factors को जब भी वो criteria को specify कर रही है before making the omnibus approval. तो क्या क्या factors होंगे जो consider करेगी कि जो transactions हैं उनका नेचर कैसा है, क्या वो ट्रांजैक्शंस रेपिटेटिव नेचर की हैं, चाहे फिर वो पास्ट में हुई हो या फिर फ्यूचर में होने वाली हैं. ठीक है. फिर देखेगी कि इस ऑमनिबस अप्रूवल को देने के लिए क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत का जस्टिफिकेशन दो, नीड का जस्टिफिकेशन देखो कि कितना जस्टिफाइड है. जस्टिफाइड है तो ही आप ऑमनिबस अप्रूवल दो. तो ये फैक्टर्स होंगे जो वो कंसिडर करेगी ऑडिट कमेटी. क्या क्या? रेपिटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस और जस्टिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ अप्रूवल. ठीक है. थर्ड पॉइंट. द ऑडिट कमिटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन द नीड फॉर ऑमनिबस अप्रूवल for transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the committee. तो ऑडिट कमेटी को जब लगता है कि जो ऑमनिबस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो रेपिटेटिव नेचर की है और ये अप्रूवल देना कंपनी के इंटरेस्ट में है, तो ऑडिट कमेटी ये अप्रूवल दे देगी. ऑमनिबस अप्रूवल शैल कंटेन और इंडिकेट दी फॉलोइंग. क्या क्या चीज़ें? पहला, द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज़, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है जो भी एंटर की जा सकती है विद द रिलेटेड पार्टी, द इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द प्राइस इफ एनी. इंडिकेटिव बेस प्राइस क्या रखा है जिसके बेसिस पर उन्होंने अमाउंट निकाला है, या फिर करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस क्या चल रहा है जिसको वो दे रहे हैं, प्लस अगर करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस दे रहे हो और फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होनी है जिसमें अभी टाइम है, तो हो सकता है ना वो प्राइस वेरी कर जाए, फ्यूचर में जाके फ्लक्चुएट हो जाए. तो इसके लिए आप अगर कोई फॉर्मूला देना चाह रहे हो वेरिएशन के लिए तो वो भी देना पड़ेगा. या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिट कमिटी टू टेक अ डिसीजन ऑन द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शंस. या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट या फिर इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? ऑडिट कमिटी के लिए, टू टेक अ डिसीजन ऑन द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन. ठीक है. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर. अच्छा, आ जाते हैं हाउएवर where the need for related party transaction cannot be foreseen and the aforesaid details are not available. Audit committee may make the omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding rupees 1 crore per transaction. क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पर related party transaction को आप नहीं फोर्सी कर पा रहे,
की होगी नहीं होगी, कितने अमाउंट की हो सकती है, उसकी अभी तक डिटेल्स भी नहीं पता चल रही है, अवेलेबल नहीं है। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ये ऑमनिबस अप्रूवल इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के, कि आप उसको पता नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेगी, अप्रूवल दे देगी। लेकिन जो वो ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं हो सकती, मतलब अप टू 1 करोड़ रुपीज़ हो सकती है मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके आज हमें नहीं पता चल रहा, उसकी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को करने की नीड होगी या नहीं। तो इस केस में आपको पर ट्रांजैक्शन की एक लिमिट दे दी इसी ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 financial year and shall require fresh approval after the expiry of such financial year। तो मैक्सिमम आपको के लिए ही मिलता है ऑमनिबस अप्रूवल, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब फ्रेश अप्रूवल फाइल करना पड़ता है। Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company। So जो भी omnibus approval है वो नहीं किया जाएगा उन transactions के लिए जिसमें क्या हो सकता है, आप कंपनी की अंडरटेकिंग को ही बेच सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। इस चीज़ के लिए omnibus approval नहीं है, इसके लिए तो आपको पहले अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। Any other conditions as the audit committee may deem fit। ठीक है, अब आ जाते हैं इफ़ नो अप्रूवल अकॉर्डेड, अगर अप्रूवल नहीं मिला, इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन वेयर द ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव सच ट्रांजैक्शन इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, तो वो रिकमेंडेशंस दे दी गए बोर्ड को, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखी थी ब्रैकेट में, उसको भी पढ़ते हैं साथ में। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 188। सेक्शन 188 वाली ट्रांजैक्शंस के लिए तो ऑडिट कमेटी के पास ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है और ऑडिट कमेटी अप्रूवल नहीं दे रही है तो रिकमेंडेशंस की जाएंगी टू द बोर्ड, ठीक है, सेक्शन 188 वाले को छोड़ के। नेक्स्ट आ जाता है वॉइडेबल ट्रांजैक्शन। सो इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट है अप टू 1 is entered into by a director or officer of the company without obtaining the approval of the audit committee, and if it is not ratified by the audit committee within 3 months from the date of the transaction, such transaction shall be voidable at the option of the audit committee। So यहाँ पे लिखा है अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें जो अमाउंट था वो 1 करोड़ रुपए तक का ही था मैक्सिमम, ठीक है, एंड ये किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने एंटर किया, पर इसके लिए उन्होंने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, या ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, या फिर उन्होंने ट्रांजैक्शन करने के बाद ऑडिट कमेटी से 3 महीने के अंदर अंदर रैटिफाई भी नहीं कराया, तो इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑडिट कमेटी की ऑप्शन पर वॉइडेबल मानी जाएगी। ऑडिट कमेटी चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इन केस सच ट्रांजैक्शन इज़ विद रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर या फिर is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it। तो अगर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है किसी ऐसी रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है जो डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी है या फिर कोई भी ऑथराइज्ड है बाय एनी अदर डायरेक्टर, तो उस केस में जो भी डायरेक्टर कंसर्न्ड होगा उसको अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उस डायरेक्टर को कंपनी को उस लॉस के लिए इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी कंपनी को लॉस हुआ उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ और नॉन एप्लीकेबिलिटी टू अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ होल्डिंग एंड इट्स होल्डली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। So it is also provided that the provisions of this clause shall not apply to a transaction between a holding company and its wholly owned subsidiary company। तो आप पहले ये कॉमा से कॉमा वाली लाइन इग्नोर करो और फिर पढ़ो।
It is provided that the provisions of this clause shall not apply to a transaction between a holding company and its wholly owned subsidiary company. लेकिन ये वाली जो transactions होंगी they should be other than the transactions referred to in section 188. So अगर कोई भी transaction हो रही है between the holding and the wholly owned subsidiary तो कोई problem नहीं है, ये आपके ऊपर ये वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे इस क्लॉज के. लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस है ये 188 वाली नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ई पॉइंट, ई क्लॉज, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ये भी काम किसका होता है? ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और एसेट्स ऑफ द कंपनी वेर एवर इट इज़ नेसेसरी. तो एसेट्स का, अंडरटेकिंग्स का वैल्यूएशन कराना होता है. तो ये भी जब वैल्यूएशन कराना है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो गए, इनको इवैल्यूएट करना भी ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. फिर आ जाता है मॉनिटरिंग द एंड यूज़ ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू पब्लिक. अगर आपने कोई भी फंड्स रेज किए थे पब्लिक ऑफर्स के थ्रू और या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स के थ्रू आपने फंड्स रेज किए थे, तो जो फंड्स हैं उसका किस तरीके से यूज़ हो रहा है, जिस पर्पस के लिए फंड्स रेज किए गए थे क्या उसका यूज़ उसी पर्पस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ को मॉनिटर करना भी किसका काम होता है? ऑडिट कमेटी का काम होता है. तो एक बार क्विकली हम वापस से सारे ब्रश अप कर लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. पहला, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब का रिकमेंडेशन कौन करता है? ऑडिट कमेटी करती है. दूसरा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेसेस, ये भी रिव्यू करना, मॉनिटर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अप्रूवल या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना है किसी भी ट्रांजैक्शन में जो किसके साथ हो रही है? रिलेटेड पार्टीज़ के साथ हो रही है. इसका हमने प्रोविज़ो पढ़ा था, ऑमनिबस अप्रूवल. फिर हमने पढ़ा कि कोई भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी स्क्रूटनी करनी है, वो भी कौन करता है? ऑडिट कमेटी. अंडरटेकिंग्स एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है जहाँ पर भी ज़रूरत है, वो कौन करता है? ऑडिट कमेटी करती है. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इनको एवेलुएट करना है, इवेलुएट भी कौन करता है? ऑडिट कमेटी करती है. फंड्स रेज करे थे पब्लिक ऑफर्स के थ्रू, उसका एंड यूज़ वही है या नहीं जिस पर्पस के लिए किए थे, नहीं, इस चीज़ को मॉनिटर करना भी किसका काम है? ऑडिट कमेटी का काम है. अच्छा, अब आ जाते हैं राइट्स ऑफ ऑडिट कमेटी पर. क्या क्या राइट्स हैं ऑडिट कमेटी के? सो द ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स. The scope of audit, including the observations of the auditors, it shall have right to review the financial statements before their submission to the board. It may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company. Section 177 subsection 5 says what? कि जो audit committee है वो auditor से comments पूछ सकती है कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उस पर ऑडिटर का क्या कमेंट है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली ऑडिटर को. ठीक है. सो ये सारा काम कौन बुलवाता है ऑडिटर से? ऑडिट कमेटी. हमने ऑडिट में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है. इट शैल हैव द राइट टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड. तो बोर्ड को सबमिट करने से पहले कौन रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? ऑडिट कमेटी करती है. और अगर कोई भी इंटरनल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से इश्यूज़ डिस्कस करने होते हैं तो वो भी कौन कर लेता है? ऑडिट कमेटी कर लेता है. मैनेजमेंट से डिस्कस करना होता है तो मैनेजमेंट से भी डिस्कस कौन करता है? ऑडिट कमेटी कर लेती है. नेक्स्ट, द ऑडिट कमेटी शैल हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर in relation to the items specified in subsection 4 or referred to it by the board, and for this purpose shall have the power to obtain the professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company. सेक्शन 177 सबसेक्शन 6 के हिसाब से ऑडिट कमेटी के पास अथॉरिटी होती है. क्या अथॉरिटी होती है? कि कोई भी मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकती है. ठीक है. और कोई भी मैटर बोर्ड ने रेफ़र किया है उस मैटर को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है. तो ये अथॉरिटी किसके पास होती है? ये अथॉरिटी होती है ऑडिट कमेटी के पास. ठीक है. फिर लिखा हुआ है कि
फिर लिखा है कि अगर उनको लगता है कि इस मैटर में, इन्वेस्टिगेशन के मैटर में उनको किसी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी ये प्रोफेशनल एडवाइस ऑब्टेन कर सकती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ले सकती है। ठीक है, सो राइट्स ऑफ कंपनी जो है ये आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, एम्पावर्ड किस चीज़ के लिए है और इन्वेस्टिगेट क्या कर सकती है। तो एम्पावर्ड है कि वो इन कमेंट्स को कॉल कर ले फ्रॉम द ऑडिटर्स, किस चीज़ से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, स्कोप ऑफ ऑडिट से रिलेटेड, कि उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगी बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड। अब एम्पावर्ड है एक तो ऑडिटर से इन्फॉर्मेशन लेने में, कमेंट्स लेने में, और दूसरा रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने में विद द स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट से भी डिस्कशन करने में। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ। अभी हम पढ़ने वाले हैं राइट टू बी हर्ड बिफोर द ऑडिट कमिटी। Now the auditors of the company and the KMP shall have a right to be heard in the meetings of audit committee when it considers the auditor's report but shall not have the right to vote. Audit committee के क्या लिखा हुआ है, राइट टू बी हर्ड, मतलब ऑडिट कमेटी के सामने किन किन को सुना जा सकता है, किन किन लोगों के पास अपनी बात रखने की राइट है ऑडिट कमेटी के सामने। तो जो भी ऑडिटर्स हैं कंपनी के, KMPs हैं कंपनी के, उनके पास राइट होता है कि उनको सुना जाए ऑडिट कमेटी मीटिंग्स के अंदर जब भी ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन उस कमेटी की मीटिंग में ऑब्वियसली दे विल नॉट हैव द राइट टू वोट। अपने आप ही थोड़ी ना वोट करेंगे अपने काम के लिए, तो राइट टू वोट नहीं है, लेकिन दे हैव द राइट टू बी हर्ड। ठीक है, सो ये हमारा ऑडिट कमेटी वाला आ गया। अब आ जाते हैं हम विजुअल मैकेनिज्म पे, जो पेज नंबर 3.22 पर गिवन है। विजुअल पॉलिसी भी बोलते हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा विसल ब्लोअर के बारे में। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? कंपनी में अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही होती है तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या है, अब वो जो पर्सन ये बात रख रहा है उसकी सिक्योरिटी या उसको कहीं ना कहीं लोग विक्टिम ना बना लें, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए विजुअल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया। So a visual mechanism is formed for the directors and employees who may report genuine concerns। उनके लिए आया कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो वो उन कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। Not all the companies but only the prescribed ones are required to establish visual mechanism. The provisions contained in section 177 subsection 9 and subsection 10 and rule 7 of the company's meetings of board and its powers, rules 2014, govern the concept of visual mechanism. These are stated below. Formation of visual mechanism. According to section 177 subsection 9, a visual mechanism shall be formed by, अब किस किस कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा तो वो ये है, पहला हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर अप्लाई होगा। सेकेंड, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज़ है। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज़ किस रूल में दी हुई है? रूल 7 में दी हुई हैं। रूल 7 के अंदर वो कंपनीज़ को कवर किया गया है जो भी कंपनीज़ पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं। जो भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं उनके ऊपर विजुअल मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। या फिर वो कंपनीज़ जिन्होंने बैंक्स से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट, 50 करोड़ रुपए लिए तो कुछ नहीं, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बोरो करा हुआ है, तो उस केस में भी विजुअल मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो किस किस केस में होगा? लिस्टेड कंपनी के केस में होगा और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज़ में होगा। प्रिस्क्राइब क्लास में 2 हैं, कंपनीज़ जिन्होंने भी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं वो, या वो कंपनी जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स से पैसे बोरो किए हुए हैं इन एक्सेस ऑफ, मतलब मोर दैन 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर, पर्पस ऑफ विजुअल मैकेनिज्म, सेक्शन 177 सबसेक्शन 9। A visual mechanism is formed for the directors and employees who may report genuine concerns in the manner prescribed in Rule 7. So visual mechanism form किया जाता है उन डायरेक्टर्स, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपने genuine concerns को रिपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है. विजुअल मैकेनिज्म टू इंश्योर एडिक्वेट सेफगार्ड्स. According to section 177 subsection 10, the visual mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of persons who use such a mechanism. देखो, जो बंदे कंपनी की गलत चीज़ों को, जेन्युइन कंसर्न्स को रेज कर रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस रिपोर्टिंग के चक्कर में वो विक्टिम्स बन जाएं. तो इसीलिए उनको विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए, वो भी एडिक्वेट. ठीक है. सो इस तरीके से आपको विजुअल मैकेनिज्म बनाना है, जिस विजुअल मैकेनिज्म में यू विल प्रोवाइड फॉर द एडिक्वेट सेफगार्ड्स ऑल्सो टू दोज पर्सन्स हु यूज सच मैकेनिज्म, and make a provision for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate or exceptional cases. और जहाँ ज़रूरत पड़े exceptional cases में वहाँ पर chairperson को भी directly access किया जा सकता है. chairperson किसका? audit committee का chairperson. ठीक है. ओके. Point number 4, establishment of visual mechanism and manner of reporting. The provisions of Rule 7 in this respect are stated as under. Users of visual mechanism. The directors and employees of the company can use the system of visual mechanism for reporting their genuine concerns. So user कौन होते हैं? Directors और employees. Companies having audit committee. The companies which are required to constitute an audit committee shall oversee the visual mechanism through the audit committee, and if any of the members of the committee have a conflict of interest in the given case, they should recuse themselves, and the others on the committee would and the others on the committee would deal with the matter on hand. सो जिन भी कंपनीज़ में ऑडिट कमेटी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? विजुअल मैकेनिज्म को देखेंगे कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है थ्रू दी ऑडिट कमेटी. एंड अगर कोई भी मेंबर्स हैं कमेटी के जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इस केस में, मतलब वो वाले भी मेंबर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फिर उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उस केस में क्या होगा? वो जो मेंबर्स होंगे वो इस कम्युनिकेशन से दूर रहें. ठीक है. तो जो दूसरे मेंबर्स होंगे वो ही इस मैटर को डील करेंगे. ठीक है. मतलब ये तो वही बात होगी कि जिसकी बुराई करने जा रहे हो, जिसकी कंप्लेंट करने जा रहे हो, उसी को अगर आप वो चीज़ बताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना. तो इसीलिए उनको हटाओ. उनके अलावा जो मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ बताई जाएगी. कंपनीज हैविंग नो ऑडिट कमेटी. In case of other companies, the board of directors shall nominate a director to play the role of audit committee for the purpose of visual mechanism. So अदर कंपनीज़ के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर को कि वो क्या करे? अपना ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करे फॉर द पर्पस ऑफ विजुअल मैकेनिज्म. क्योंकि कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ऑडिट कमेटी के बाद कौन आता है? बोर्ड आता है. बोर्ड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप उनका रोल निभाओ जो ऑडिट कमेटी करती इन केस ऑफ विजुअल मैकेनिज्म. Other directors and employees may report their concerns to such nominated director. Adequate safeguards against victimization. As stated in section 177 subsection 10, the visual mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of employees and directors who avail of it. ठीक है. Direct access is in exceptional cases. So as stated in section 177 subsection 10, the employees and directors who avail of visual mechanism may have direct access to the chairperson of the audit committee या फिर director nominated to play the role of audit committee in case there is no audit committee in the company. ठीक है. एक्शन अगेंस्ट रेपिटेड, क्योंकि हमने पॉइंट रिपीट करा है, मतलब पहले भी हम ऑलरेडी इसके साथ पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आई होप आपको 5th पॉइंट क्लियर होगा. 6th पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट रेपिटेड frivolous complaints. In case of repetitive frivolous complaints being filed by a director or an employee, the audit committee or the director nominated to play the role of audit committee may take suitable action against the concerned director or employee, including reprimand. एक एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, जो गलत गलत कंप्लेंट्स बार बार देता रहता है. ठीक है. तो ऐसे डायरेक्टर के केस में क्या होगा? सूटेबल एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं किसी की, तो उस केस में सूटेबल एक्शन लिया जाएगा. डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ विजुअल मैकेनिज्म, सेक्शन 177 सबसेक्शन 10.
It is imperative for the company to disclose the details of the establishment of visual mechanism on the website of the company and its sports report. अब आपने कुछ किया है, आपके कंपनी के अंदर विजुअल मैकेनिज्म कंप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. डिस्क्लोज कहाँ करोगे? कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड्स रिपोर्ट में. अब आ जाता है पनिशमेंट. बहुत कॉमन सी पनिशमेंट है, जो आपको ये वाली पनिशमेंट पेनल्टी काफ़ी कॉमन मिलेगी, मोस्टली सेक्शंस में दी होती है. Punishment for contravention of section 177 which is given under section 178 subsection 8. In case of contravention of section 177 the punishment shall be as under. कंपनी के लिए punishment क्या होगी अगर कंपनी liable है तो? Punishable with fine which shall be minimum 1 lakh maximum 5 lakh. तो 1 lakh to 5 lakh की penalty है. डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए 1 साल की जेल हो सकती है, अप टू 1 ईयर, कम भी हो सकती है बट मैक्सिमम 1 ईयर तक की, या फिर फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख रुपए तक, या फिर दोनों. ठीक, कवर हो गई. लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होता है, जो भी फॉर्मेशन होती है, कॉम्पोजिशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या ऑडिट कमेटी की राइट्स होती हैं, इसको कौन गवर्न करता है? इसको सेबी LODR रेगुलेशंस गवर्न करती हैं, जो कि कौन से एक्ट में इशूड है? सेबी एक्ट 1992 में इशूड है. सब हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेक्शन 178. सेक्शन 178 में क्या क्या मैंशनड है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एंड पनिशमेंट. सो सेक्शन 178 के हिसाब से NRC की बात करते हैं, मतलब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, जो कौन से सब सेक्शंस में दी है? 1 to 4 में दी हुई है, और साथ साथ रूल 6 लिया हुआ है. सो ठीक है, सारे प्रोविजंस इसके अंदर दिए हुए हैं. आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. Formation of Nomination and Remuneration Committee. Section 178 subsection 1 read with rule 6 state that the board of directors of every listed public company and company covered under rule 4 independent directors के केस में लगता है, shall constitute a nomination and remuneration committee. तो आपको याद ईजी हो जाएगा याद करने में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, ऑडिट कमेटी हो या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी हो, लिमिट क्या है? सेम है. लिस्टेड कंपनी हो गई, लिस्टेड पब्लिक कंपनी. दूसरा हो गया आपके पास कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर, या फिर बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़, या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़. ठीक है, तो वही लिमिट इस पर भी एप्लीकेबल है. कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट NRC, बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी ऑडिट कमेटी में पढ़ा था, जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरी, डोमेंट कंपनी. और सेम ही हमने किस में पढ़ा था? सेम हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में, तो बिल्कुल सेम है. फिर आ जाता है व्हेन अ कंपनी सीजेस टू कॉन्स्टिट्यूट एन NRC. ये भी वही सेम है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो आप जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक आपके ऊपर नहीं लगेगा. फिर क्लैरिफिकेशन है. क्लैरिफिकेशन इज ऑल्सो सेम कि जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी जो भी एंड डेट है उस पर जो भी टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल या लोन्स का अमाउंट है वो आपको कंसिडर करना है टू चेक दी लिमिट्स. ये भी बिल्कुल सेम है. अब आ जाते हैं सीधा कॉम्पोजिशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. मैं ऊपर वाला रीड नहीं कर रही बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि सेम है, कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा उसको रीड करके. अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज करके उसको एक बार रीड कर सकते हो. अगर आपको याद है, आपको पता है, तो बिल्कुल सेम आपको समझ आएगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी में एज इट इज़ सेम दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. द NRC शैल कंसिस्ट ऑफ 3 or more non-executive directors, out of which less than 1/2 shall be the independent directors. So minimum requirement है 3 non-executive directors की minimum requirement है, प्लस बोला हुआ है कि जिसमें से एटलीस्ट जो हाफ होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो अगर 3 है तो 3 का हाफ करोगे 1.5. 1.5 में ऑब्वियसली फ्रैक्शन को आपको +1 करना पड़ेगा, तो 2 आपके कितने हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अगर कंपनी में 6 हैं डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव, तो उस केस में 3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम. आ जाते हैं अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, जो है चेयरपर्सन से रिलेटेड, जिसमें लिखा है कि अगर आपकी कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो आपकी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता है. इट डज़ नॉट मैटर कि जो चेयरपर्सन है कंपनी का वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इट डज़ नॉट मैटर. जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का
चेयरपर्सन बन सका। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि कमेटी का वो मेंबर बन सकता है या नहीं, मेंबर तो बन सकता है बट चेयरपर्सन नहीं बन सकता। सो द चेयरपर्सन वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल नॉट चेयर सच अ कमिटी, हाउएवर ही मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। ठीक है, आ जाते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। सो द वेरियस फंक्शंस ऑफ एनआरसी शैल बी एज अंडर। सबसे पहला, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशंस एट्सेट्रा। सो जो एनआरसी है वो क्राइटेरियाज फॉर्मुलेट करेगी जिससे कि आप ये डिटर्मिन कर पाओ कि क्या क्या डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये सब कौन फॉर्मुलेट करेगा? एनआरसी फॉर्मुलेट करेगी। उसका नाम ही बता रहा है, नॉमिनेट करना है, रेम्युनरेशन कमेटी है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? एनआरसी करेगी। रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग रेम्युनरेशन। द एनआरसी शैल recommend to the board a policy relating to the remuneration for the directors, KMPs and other employees. So NRC बोर्ड को recommend करेगी कि आप ये remuneration रख सकते हो या इस तरीके का कुछ आप पॉलिसी बना सकते हो to give the remuneration to the directors, KMP and the other employees. ठीक है, third point, recommendation for the appointment and removal. The NRC shall identify the persons who are qualified to become the directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, recommend to the board their appointment and removal. So NRC क्या करेगी? उन persons को identify करेगी जो directors बनने के लिए qualified हैं। ठीक है, एंड ऐसे कौन से पर्सनस हैं जिनको आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट कर सकते हो। तो इस चीज़ को वो कौन बताएगा? इस चीज़ को रेकमेंड किया जाएगा टू द बोर्ड कि आप इनको अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो। अब इसमें जो वर्ड है सीनियर मैनेजमेंट का मतलब नोट में बताया हुआ है। द एक्सप्रेशन सीनियर मैनेजमेंट मीन्स पर्सनल ऑफ द कंपनी हु आर द मेंबर्स ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम excluding the board of directors comprising all the members of management one level below the executive directors including the functional heads. executive directors के just one level below जो भी होते हैं उन पर्सनल्स को हम सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आ सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स जो होते हैं जस्ट बिलो द लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नोन एज सीनियर मैनेजमेंट पर्सन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। द एनआरसी शैल स्पेसिफाई द मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड, कि किस तरीके से आप बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, उसकी कमेटी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, टू बी कैरिड आउट ईदर बाय द बोर्ड, एनआरसी या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी। कौन करेगा? या तो एनआरसी करेगी। एनआरसी तो मैनर स्पेसिफाई करेगी किस चीज़ का, कि आप बोर्ड की परफॉर्मेंस या कमेटी की परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन ये जो काम है, ये जो मैनर है, कौन परफॉर्म करेगा? या तो बोर्ड करेगा या एनआरसी करेगी या फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को भी आप हायर कर सकते हो टू परफॉर्म सच वर्क एंड रिव्यू करेगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एनआरसी, पैरामीटर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178 सबसेक्शन 4, the Nomination Remuneration Committee shall, while formulating the policy under section 178 subsection 3, ensure that the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate the directors of the quality required to run the company successfully. सो जो पैरामीटर्स हैं पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए वो एनआरसी करेगी। क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी? पहला, कि किस तरीके का आपका रेम्युनरेशन होना चाहिए जिससे कि वो रेम्युनरेशन आपके डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके टू परफॉर्म गुड क्वालिटी वर्क, जिससे कि कंपनी क्या होगी? सक्सेसफुली काम कर पाएगी। तो इसके लिए एनआरसी एक लेवल बताएगी कि इस लेवल का होना चाहिए, ये कंपोनेंट्स होने चाहिए रेम्युनरेशन में जो कि क्या होंगे? डायरेक्टर्स के लिए रीजनेबल और सफिशिएंट होंगे, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो पाएँ, रिटेन हो पाएँ कंपनी में और मोटिवेटेड रहें हमेशा टू वर्क फॉर द कंपनी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है,
अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पैरामीटर पे, रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू द परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स द एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। तो जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क को मीट कर पा रहे हों, ऐसा होना चाहिए। जो भी रेम्यूनरेशन का रिलेशनशिप है विद द परफॉर्मेंस वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा परफॉर्म करोगे तो इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। Remuneration to the directors, KMP and senior management involves a balance between fixed and incentive pay, reflecting the short-term and the long-term performance objectives which are appropriate to working of the company and its whole. तो जो भी रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो डायरेक्टर्स को, KMPs को, सीनियर मैनेजमेंट को, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि फिक्स्ड कंपोनेंट इतना है, वेरिएबल इतना है, इंसेंटिव बेस्ड इतना है, जिससे कि पता चल सके कि कितना शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है और कितना लॉन्ग टर्म है, और उसके हिसाब से वो उसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब आपने सारे काम कर लिए, अब आपको इस पॉलिसी को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट सच पॉलिसी विच इज़ फॉर्मुलेटेड अंडर सेक्शन 178 सबसेक्शन 3 शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट। इस चीज़ में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में कि वेब एड्रेस क्या है। So it is imperative that such policy, that is the policy formulated under section 178 subsection 3 shall be placed on the website and if any, and the salient features of the policy and changes therein if any, along with the web address of the policy if any, shall be disclosed in the board's report, ठीक है। अब आ जाते हैं अटेंडिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स, सेक्शन 178 सबसेक्शन 7 पर। So the chairperson or in his absence any other member of the committee authorized by him in this behalf shall attend the general meetings of the company. So कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स होती हैं वो कौन अटेंड करेगा, तो जो कमेटी का चेयरपर्सन है वो, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहा है और उसने किसी को ऑथराइज़ किया है तो वो ऑथराइज पर्सन अटेंड करेगा जनरल मीटिंग को, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो जैसा हमने ऑडिट कमेटी में पढ़ा था, सिमिलरली ये गवर्नड होंगे बाय दी सेबी LODR रेगुलेशंस। और इस केस में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू दी लिस्टिंग अग्रीमेंट जो मेंबर्स होंगे NRC के वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होंगे एंड द चेयरपर्सन नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सो लिस्टेड कंपनी के केस में ये चीज़ लिखी हुई है इन द नोट। So in the case of a listed company, the formation, composition, responsibilities and rights of the Nomination and Remuneration Committee shall be governed by the SEBI LODR regulations issued under SEBI Act 1992. According to the listing agreement, the members of the NRC shall be non-executive directors and the chairperson needs to be an independent director. अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन पे। तो जो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में क्लॉज नंबर जो भी बी है, जो भी बेसिकली बोलूँ तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन 178 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये अप्लाई नहीं होगा। किसके केस में? गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सबसेक्शंस 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 178 अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट जहाँ पर भी सीनियर मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, अदर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो तो अप्लाई होंगे, उसके अलावा अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। सो सीनियर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को छोड़कर बाकी कभी भी नहीं होगा, मतलब डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। दैट विल बी ओनली अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड दी अदर एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स के लिए नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। कौन सी कंपनी के केस में? गवर्नमेंट कंपनी के केस में जिसने कंप्लायंस किया होगा विद सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब हमारे पास लास्ट कमेटी आ रही है इसमें, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, SRC। फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ SRC सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 lays down the provisions relating to the formation and constitution and functioning of the stakeholders relationship committee as under। सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कौन सी कंपनी के, ऐसी कंपनी के जिसमें
मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स हैं या फिर कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं किसी भी टाइम पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स, तो उसके केस में उन्हें स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ईयर एंड पर नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे साल में अगर एक भी दिन 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स थे या डिबेंचर होल्डर्स थे, डिपॉजिट होल्डर्स थे या फिर कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स थे, तो उस केस में उन्हें एसआरसी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ जाएगी। So the board of directors of a company which consists of more than 1000 shareholders, debenture holders, deposit holders and any other security holders at any time during a financial year shall constitute a stakeholders relationship committee. Section 178 subsection 5, chairperson of the stakeholders relationship committee. So SRC shall be headed by a chairperson who shall be a non-executive director. तो chairperson कौन होगा? non-executive director ही होगा। फर्दर एसआरसी के अंदर जो अदर मेंबर्स होंगे वो होंगे एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। सो फर्दर द एसआरसी शैल कंसिस्ट ऑफ सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। चेयरपर्सन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 178 सबसेक्शन 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी क्यों फॉर्म हुई वो पढ़ते हैं। So SRC shall consider and resolve the grievances of security holders of the company. It shall protect the interests of all the security holders and not merely of the equity investors. So यहाँ पर सिंस लिखा था कि सिक्योरिटी और भी कोई सिक्योरिटी होल्डर्स हैं और वो इतने नंबर से मतलब मोर देन 1000 हो जाते हैं। 1000 है तो क्या बनाना पड़ेगा? SRC नहीं, 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। So अगर SRC की बात करें तो वो सभी ग्रीवेंसेस को कंसिडर करेगी और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर्स के ही इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी, वो सभी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का सिक्योरिटी होल्डर हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 178 सबसेक्शन 7, चेयरपर्सन और अदर ऑथराइज्ड मेंबर टू अटेंड द जनरल मीटिंग। द चेयर or in his absence any other member of the committee authorized by him in this behalf shall attend the general meetings of the company. So कोई भी चेयरपर्सन है हर एक कमेटी का और उसकी एब्सेंस में कोई और मेंबर है कमेटी का जिसको उसने ऑथराइज़ किया है तो वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। सेम है जो हमने अभी एनआरसी में भी पढ़ा था। ठीक है, अब आ जाते हैं पेनल्टीज़ पर जो सेक्शन 178 सबसेक्शन 8 में दिए हुए हैं, विच इज़ सेम जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। इन केस ऑफ ऑडिट कमेटी सेम वही पेनल्टीज़ हैं। एनआरसी के लिए कोई पेनल्टी नहीं दे रखी, बट ऑडिट कमेटी और एसआरसी के लिए दे रखी है। इनके नहीं सॉरी एनआरसी भी तो सेक्शन 178 में आता है ना। सो इधर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 178 और 178 में आपकी एसआरसी भी कवर है और एनआरसी भी कवर है, तो दोनों के लिए यही पेनल्टी है। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो फॉर द ऑडिट कमेटी एनआरसी एंड एसआरसी तीनों के लिए पेनल्टी सेम है। अगर कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, कंपनी लायबल है, तो उस केस में फ़ाइन हो जाएगा 1 लाख टू 5 लाख। अगर कोई भी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है तो उसको या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर या फिर फ़ाइन लग सकता है 25,000 टू 1 लाख या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर। पेनल्टी तो आपको याद ही हो गई होंगी। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रावेंशन पर। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा अगर एसआरसी कोई भी इशू को ग्रीवेंस को रिजॉल्व नहीं कर पाती इन गुड फेथ, मतलब उसने पूरी कोशिश करी, सारी चीज़ें कंप्लाई करी, बट स्टिल ही इट वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व द ग्रीवेंस, तो उस केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो सेक्शन 178 सबसेक्शन 8 की पनिशमेंट पेनल्टी दे दो। ऐसा नहीं है, अगर गुड फेथ में उसने काम किया था तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द इनएबिलिटी टू रिजॉल्व और कंसिडर एनी ग्रीवेंस by the stakeholders relationship committee in good faith shall not constitute a contravention of the section 178 and therefore there is no penalty to be attracted. This is as per the, you can refer to the proviso to section 178 subsection 8 for this. ठीक है, अब नोट में वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में जो भी फॉर्मेशन है, कॉम्पशन है, कहाँ पर होगा? सेबी एलओडीआर की रेगुलेशंस में होगा, जो कौन से एक्ट के अंदर इशूड है? सेबी एक्ट 1992 के अंदर इशूड है। अब बात आती है कि जो भी एसआरसी है, एनआरसी है, ये कौन सी कंपनीज़ पर अप्लाई नहीं होगा? तो सेक्शन 8 कंपनीज़ के ऊपर एनआरसी और एसआरसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा अगर एसआरसी और एनआरसी ने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया हुआ है। आई होप
आपको ये सारी कमिटीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और सिंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको बार बार सुन लो, जिससे क्या होगा, आप जब बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। आपको अच्छे से एक एक लाइन, एक एक सबसेक्शन भी याद हो जाएगा। अगर आप इसको 2-3 बार अभी के अभी फटाफट से रिवाइज़ कर लोगे और फिर 2-3 दिन में फिर से एक बार ही देख लोगे तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा अलॉन्ग विद दी सबसेक्शंस एंड ऑल। तो आपको अच्छे से याद को कर ले हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। आज हमने सेक्शन 137 और सेक्शन 178 कवर किए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आपको पसंद आए और आपको लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। और आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस जो मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी सेम ही लिमिट्स थे, तो मैं उसका लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने वहाँ पर पिंड कमेंट किया हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, सो आई होप you enjoyed today's session. See you in the next session. Take care. Bye bye.